Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in their own head and their own negativity. So if you are the one, then my channel is for you. So today I wanted to talk about women. As I shared my own story of not believing in myself and seeing myself as someone who's not deserving of love, who's not deserving of anything, because I saw myself as someone who's not that beautiful, and I thought, you really need to be extremely beautiful and extremely good looking, and you have to fit in all those standards which society made for us. And if you and अगर मैं उन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं हुई तो आई एम नॉट गुड, तो आई एम नॉट good enough. And people made sure who were around me that I start to believe that I'm not good enough. They made sure कि इसको तो बिलीव करना ही चाहिए कि शी इज़ नॉट गुड इनफ. बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि when we are around those people who did not have what they wanted to have in their life, and they are in lack, and they are filled with jealousy, resentment, and all those things. So when they see someone, because consciously they're not aware that this person will have, but somewhere they are aware that this person have potential, and this person can have, and this person have what they do not have, so they try their best टू डिम द लाइट. ओके, उसका सेल्फ स्टीम तोड़ने का वो पूरा ट्राई करते हैं कि इस इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना ही नहीं चाहिए. हम क्या करें कि जो हमें नहीं मिला वो इसको भी ना मिले. हम ऐसा क्या करें कि हम इसका भी सेल्फ स्टीम तोड़ दें. हम ऐसा क्या करें कि जिन जिन चीज़ों पे हमें बिलीव नहीं है वो भी इन चीज़ों पे बिलीव ना करें. हम ऐसा क्या करें कि इनको इसको लाइफ में वो कुछ भी ना मिले जो हमको नहीं मिला. तो हम इसको अपने लिमिटिंग बिलीव्स बताएंगे, हम इसको शेम करेंगे, हम इसके साथ वो सारी चीज़ें करेंगे जो हमारे साथ हुई उससे ज़्यादा करेंगे कि इसको भी वो चीज़ें ना मिले. और कहीं ना कहीं जब उस इंसान को वो चीज़ें मिलने लगती हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है, तो वही लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं, उसके बारे में बहुत बुरा बोलने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं. चलो, ये तो एक चीज़ हुई. दूसरा, आई वॉन्टेड टू से दैट चलो ठीक है, आपके साथ ये हुआ एंड आपने अपनी स्टोरी शेयर करी, जो कि बहुत ही करेजियस एक्ट है, इतना इजी नहीं है. एंड जिन जिन लोगों ने आपको ऐसा फील कराया उन्हें फॉरगिव करने की भी इतनी जल्दी ज़रूरी नहीं है. बट पहला स्टेप अगर आपने एक्नॉलेज भी कर लिया कि नो यार, आई एम डिज़र्विंग ऑफ मोर देन वॉट आई फील अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ. I want to know more about myself. I want to feel that I am deserving of more. But right now, I am not able to believe that I am deserving of more. Right now, I just don't believe it. Right now, I feel that I am not that beautiful, not that tall. I do not have that type of a skin. I'm not like this. I'm not like that. But I really want to work on myself. I do not want to become this complaint box, because I personally run away from the type of people who are complaint box. Okay? Because people who are complaint box, they will always suck your energy. Deep down, they are extremely resentful of you. They are extremely jealous of you. They want to dim your light. Okay? But superficially, they will always need your help. They will always come to you and they will need you. They will want to talk to you, and they will tell you all their limiting beliefs. And the moment you will start to tell them and don't believe in all these things, either they will get offensive that how can you believe in all these things, you should not believe in all these things, you are not understanding my pain and sufferings. Or they will want you to make them believe in what you believe all the time. They will always need you. A kind of needy people जहाँ पे they will not give you anything, any compliment, they will not be there for you, no nothing, but they will always come up with their complaints.
complains about life, complains about their own situations, complains about their own body, how they are not able to do. And if you will suggest them anything, they will tell you how and why they are not able to do what they are not able to do, how difficult it is for them, how life is hard for them, how life is not good for them. They will tell you all these sort of things. So because I was the kind of person who's always like, be positive, think positive, life is good, you are good, everything is working out, everything works out. Because trust me guys, for me चीज़ें काम करी हैं, ठीक है, लोगों के साथ मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे बिलीव नहीं किया कि लाइफ इज़ नॉट गुड. मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि एवरीथिंग वर्क्स आउट. हाँ, इमोशनल पर्जेस होते हैं, इंटेंस इमोशंस फील होते हैं, पेन, सफरिंग सब फील होता है, हर्ट भी फील होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं होप को छोड़ दूँ. मेरे अंदर हमेशा वो होप रही है कि नहीं नहीं यार, चीज़ें वर्कआउट होंगी और करेंगी. और अगर आप सिर्फ कंप्लेन जोन में स्टक हो जाएंगे ना, तो आपको लाइफ में कुछ भी ब्यूटी नहीं दिखेगी. आपको सिर्फ कंप्लेन्स दिखेंगी हर चीज़ में. आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आप वहाँ कंप्लेन करोगे. आप कुछ शॉप पे ख़रीदने जाओगे, आप पैसों के लिए कंप्लेन करोगे. आप रोड पे चल रहे हो, आप रोड के लिए कंप्लेन करोगे. आप नेचर के लिए कंप्लेन करोगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. आप अपने वर्क के लिए कंप्लेन करोगे. आप अपने मैरिज के लिए कंप्लेन करोगे. आप अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए कंप्लेन करोगे. अब आप ये सोचो कि वो कंप्लेन करके आपका क्या फ़ायदा हो रहा है. कोई फ़ायदा नहीं है. आपको सिर्फ आपके बस भड़ास निकल रही है. आप बस 2-3 लोगों के साथ बैठ के अपनी भड़ास निकाल रहे हो और आपकी भड़ास निकल रही है, ठीक है. और वो भड़ास निकालने से क्या होगा. चलो ठीक है, आपने 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया, 5 बार बोल दिया, लेकिन आप खुद सोचो, अपने पैटर्न्स को खुद देखो कि आप हर बार वही चीज़ें बोल रहे हो, लेकिन 10 साल से आप वही लाइफ जी रहे हो. तो इसका मतलब कि आपको कंप्लेन करना अच्छा लगता है. इसका मतलब कि आपको लोगों के सामने अपने दुखों को बोलना, अपने दुखों को रोना अच्छा लगता है. आपको लोगों से सिंपैथी गेन करनी अच्छी लगती है. लेकिन वहीं पे कोई एक इंसान उसका सल्यूशन बता दे, वो इंसान सबसे बुरा इंसान हो जाएगा आपके लिए. वो इंसान आपकी आंखों को इतना खटकेगा कि आप उसके बारे में बहुत गलत बातें करना स्टार्ट कर दोगे कि ये इंसान कितना बुरा है, इसने मुझे कैसे ठीक करने का सल्यूशन देने का ट्राई किया, इसने कैसे मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, जो मैं रो रही हूँ उसको क्यों नहीं समझा, कैसे ये मुझे ठीक करना चाहती है, कैसे ये मुझे पॉजिटिव करना चाहती है. तो आप ट्रिगर हो जाओगे कि यार मेरे विक्टिम जोन को ये क्यों नहीं समझ रही है. बट आई ट्रूली बिलीव दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. एंड आई नो दैट कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिलीव नहीं होता, जब हर चीज़ पे गुस्सा आता है, आपको नहीं समझ में आता, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत मीनिंगलेस लगती है, बेकार लगती है, आपको हर चीज़ पे गुस्सा आता है. इवन भगवान पे भी गुस्सा आता है. इफ़ यू बिलीव इन गॉड, समझ में आता है. एक फेज़ होता है लाइफ का. लेकिन जब तक आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी. जैसे कि मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स हैं. फिर एक फियर मैं आपको बताती हूँ. आई एम नॉट ऑल्सो अवेयर ऑफ इट. अनकॉन्शियस फियर है मुझे गुस्से से. अगर मुझे किसी भी इंसान को मैं देखती हूँ और मुझे सबकॉन्शियसली उनका गुस्सा फील हो जाता है कि अनकॉन्शियसली मुझे इस इंसान के गुस्से से फियर है, तो मैं पीपल प्लीजिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ. मुझे लगता है कि ये ऑफेंड ना हो जाए, ये गुस्सा ना हो जाए, ये इसको मेरी कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, तो मैं अनसेफ फील करने लगती हूँ. लेकिन मैंने कल अपने आप को बोला, जो धीरे धीरे मैं इस पर एक्शन ले भी रही हूँ, कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा, होने देते हैं इसको ऑफेंड, होने देते हैं इसको गुस्सा, ठीक है. ये नहीं कि मैं एकदम से जाके उसको ऑफेंड कर दूँगी, नहीं. मैं कोई एक छोटी सी ऐसी चीज़ बोलूँगी जिससे मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ, एंड उससे उस चीज़ में ऑफेंड होने दूँगी. मैं कोई बहुत बड़ा बम का धमाका नहीं फोड़ दूँगी. लेकिन ये मेरा विक्टिम जोन था, ये मेरा डर था कि मैं हमेशा डरती थी लोगों के अनकॉन्शियस हिडन एंगर से, जो वो
अपने फेस पे नहीं दिखा पाते हैं, बट आई कैन फील इट दैट दे हैव इट। तो मैं हमेशा उनके अनकॉन्शियस एंगर से डर के पीपल प्लीजिंग करती थी। तो वो जो भी कहते थे उसमें हाँ 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 ठीक है, पीपल प्लीजिंग, ओके। उनकी तारीफ करना, उनको बूस्ट करना, उनको बस गुस्सा ना आ जाए, इसको मुझे ठीक रखना था बस। फिर मैंने धीरे धीरे, मैंने कल बैठी और मैं सोची कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी कोई सक कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, मैं उनकी मीनिंगलेस बातों पे हाँ या फिर उनको प्रेज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ और अगर उस चीज़ से उनको गुस्सा आ रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोगों के सामने चिल्लाएंगे, मे बी हाथ भी उठा दे जो मेरे माइंड को लगता है, बल्कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाएंगे, मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे, जो मेरे माइंड को लगता है। मैंने बोला ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये सब हो सकता है, हाथापाई कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, मे बी मेरे सेशंस को छोड़ सकते हैं, मे बी मेरे बारे में बहुत गलत बोल सकते हैं, मेरे पे बहुत गुस्सा हो सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में ये है कि मुझे बस उनके एंगर को जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे डर लग रहा है कि अभी गुस्से में अब मैं क्या करूँ, मैं इनको कंफर्टेबल फील करवाऊँ, इनको पीपल प्लीजिंग करूँ, मैं क्या करूँ कि बस मुझे सेफ फील हो जाए। तो वहाँ पे मैं वो अपने आप को फील होने दूंगी कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि इनका गुस्सा मेरे लिए थ्रेट ना बन जाए, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्ट किया है, धीरे धीरे ऐसी चीज़ों पे नो बोलना, ऐसी चीज़ों में सच बोलना जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे सच बोल के, यहाँ पे नो बोल के, यहाँ पे मेरी बातें रख के मुझे जजमेंट मिलेगा, मुझे सीरियस नहीं लिया जाएगा, मुझ पे वो गुस्सा होंगे, बोलेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता। वहाँ पे मैंने ये अंदर से चॉइस किया कि मैं सच बोलूँगी, भले ही वो गुस्सा हो जाए, भले ही वो कुछ हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद जिस चीज़ के लिए वो गुस्सा हो रहे हैं, अगर वो मुझे ठीक लगती है कि हाँ ये मुझ में है, मुझे ये मुझ में ठीक करना चाहिए, जैसे कि मुझे फोकस करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम से वो फोकस करने का ट्राई करूँगी, मैं बैठ के लॉस्ट नहीं हो जाऊँगी। तो आई ऑलवेज बिलीव इन सल्यूशंस। अगर हम सल्यूशन, हमारा माइंड सल्यूशन की तरफ जाए तो सल्यूशन हर जगह मिलते हैं, ठीक है। और वो गुस्सा मेरे अंदर इतना, गुस्सा नहीं कहूँ, गुस्सा इज़ द रॉन्ग वर्ड, वो डर मेरे अंदर इतना बढ़ गया था कि नाउ आई वाज लाइक यार मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, इससे ऐसा क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में जो मुझे इसके गुस्से से इतना डर लग रहा है। तो मैंने वो चॉइस किया कि मुझे जैसा भी फील हो रहा है मैं अपने आप को फील होने दूंगी, लेकिन मैं वही बोलूँगी जो मुझे सही फील होता है। मैं उनको प्लीज़ या फिर उनको काम डाउन करने के लिए, जबकि मुझसे बहुत बड़े हैं फिर मुझसे छोटे भी हैं, उनको काम डाउन करने के लिए खुद की सच्चाई से दूर नहीं हटूंगी। तो मे बी इन फ्यूचर दिस विल हेल्प मी टू हील माई फियर ऑफ पावर, कि पावर को मुझे जहाँ पे भी फील होता है कि यहाँ पे पावर है, वहाँ पे मैं पीपल प्लीज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी में अनसेफ्टी फील होती है कि आई एम नॉट सेफ, दे विल टेक द रूफ from my head, I'll not have food to eat, all these type of fears, I will allow myself to feel it. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसा मेरा माइंड सोच रहा है कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो चेंज होगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का वो डर कि देखो अब मैंने नो बोल दिया, अब मैं बनकर रही, मैंने बाउंड्री सेट की, उसके बाद भी चीज़ें ठीक हैं, ठीक नहीं है, फिर धीरे 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 चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन में जाके कोई बहुत बड़ा चेंज कर दो। आप जिस चीज़ को लेके भी नेगेटिव बिलीव है, आपका बिलीव है, या फिर खुद को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके, लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव बिलीव है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, ठीक है, उसमें से कोई छोटी सी चीज़ को चेंज करने का ट्राई करिए, ठीक है। लाइक अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल, ठीक है, तो आप छोटा सा स्किन केयर करना स्टार्ट करिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है।
If you feel your body type is not good, try to take care of your diet. Okay? Try to go to the gym or maybe try to go for a walk. छोटा सा चेंज करने का स्टार्ट करिए, देखिए उससे आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है ना. And today I also wanted to share that I have been sharing videos on YouTube for a very long time. I think 1 year होने वाले हैं. And I just started to share my video on YouTube somewhere, maybe from lack, that I felt that I'm not good at anything, and what can I do. I just felt that I have a good voice. The way I talk is better. So let me just share my story. Let me just share what I was going through. But in this process, I was trying to be like someone else also. In this process, I was trying to be like someone else. I realized it. I changed it. And now I'm sharing all these stuff with you all. All these things with you all. 1 minute. Yeah. Now I'm sharing all these things with you all. I have no idea कि इसका आउटकम क्या होगा. I just don't know. I just know that कि मुझे जब भी कुछ रियलाइज़ हो रहा है, मुझे कैमरा ऑन करना है और मुझे रिकॉर्ड करना है एंड मुझे यूट्यूब पे पोस्ट करना है. जहाँ पे भी मैं पोस्ट करती हूँ मुझे पोस्ट करना है. आई हैव नो आइडिया कि इसका आउटकम क्या होगा. इट्स जस्ट दैट आई हैव दिस फीलिंग इन माई हार्ट, वॉइस इन माई हेड कि प्रियंका करती जाओ. कम से कम कैमरे के सामने बोलने का प्रैक्टिस तो हो रहा है. गलत बोल रही हो, सही बोल रही हो, जैसा भी बोल रही हो, ठीक है, कम से कम तुम्हारे माइंड को ये तो लग रहा है कि तुम अपनी सारी चीज़ें निकाल रही हो धीरे धीरे. ठीक है, मे बी इसका आउटकम कुछ ना हो, बट समवेयर आई बिलीव कि इस यूनिवर्स में आप जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ आपने किया है, उस सब चीज़ का एक मतलब होता है. ठीक है, इससे भी किसी ना किसी वे में मेरी हेल्प हो रही होगी, किसी ना किसी वे में मैं खुद को हील कर रही होंगी, किसी ना किसी वे में आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे सीन फील कराते हो, तो कहीं ना कहीं मेरी हीलिंग हो रही होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप इंस्टा पे मुझे टेक्स्ट करते हो, वॉइस नोट्स भेजते हो कि कैसे जो मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करी है वो आपको हेल्प कर रही है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत हील करती है कि क्या सच में मेरी जर्नी किसी को हील कर सकती है, हेल्प कर सकती है. हील तो बहुत दूर की बात हुई, क्या सच में मैं किसी को भी इंस्पायर कर सकती हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा पहले नहीं लगता था कि यार मैं सच में ऐसा कुछ कर सकती हूँ. क्या मैं सच में क्या सच में मेरी बातें किसी काम की हैं या फिर मैं कुछ काम की चीज़ें बोल रही हूँ. लेकिन मैंने एक चीज़ खुद को बोली थी कि यार कुछ भी हो जाए प्रियंका, डिसिप्लिन है, हफ्ते में 2 वीडियोस तो ज़रूर डालनी है. अगर तुम ये भी नहीं डाल पाई तो मतलब कि तुम भी अपनी प्रॉमिस से पीछे हट रही हो. फिर तुम कैसे लोगों को कुछ बोल सकती हो या फिर कैसे खुद से कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हो जब तुम खुद ही की डिसिप्लिन को नहीं समझ रही हो और उसको पूरा नहीं कर रही हो. तो तुम्हें खुद पे वो ट्रस्ट नहीं आएगा, तुम्हें खुद पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. आज मुझे खुद पे बहुत प्राउड है कि मैं कोई भी चीज़ अगर खुद को बोलती हूँ, जैसे कि दिवाली तक आई एम नॉट गोना चीट, दिवाली पे दिल खोल के आई ईट, जबकि मुझे पता है मेरे से नहीं खाया जाएगा. लेकिन क्योंकि मैंने खुद को वो बोला है ना, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में. वैसे ही ये वीडियो कुछ हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो कॉन्फिडेंस आता है जब मैं खुद को मिरर में देखती हूँ कि नहीं यार, मैं हफ्ते में 2 वीडियो कुछ भी हो जाए, कभी कभी 1 हो जाती हैं, कभी कभी मैं नहीं बना पाती, लेकिन मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में मैं 2 वीडियोस डालूँ. मैं खुद को इतना प्रेशर नहीं करती. कभी कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मुझे फील होता है या फिर मैं कभी बहुत ज़्यादा कहीं बिज़ी हूँ तो नहीं हो पाता, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ये प्रॉमिस को पूरा करूँ. तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. जहाँ पे आपको जो चीज़ करने से पहले डर लगता था वो चीज़ आप करो.
सच बता रही हूँ, आपका वो ओवर थिंकिंग माइंड बंद हो जाएगा और वो डर निकल जाएगा कि वो बस आपके माइंड में है बस। जैसे कि मुझे नहीं पता गाइस कि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो कभी कभी आपको अपना पोटेंशियल खुद नहीं पता होता है। एंड आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन, स्टिल आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अपना ही पोटेंशियल नहीं पता है। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, मैं आप सबको कुछ स्टोरीज़ अपने बारे में शेयर और अपनी रियलाइजेशंस शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन अब मेरे हार्ट में, और हार्ट में कह रही हूँ, अब मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि सेकंड स्टेप का टाइम आ गया है। आई जस्ट डोंट नो कि वो सेकंड स्टेप क्या है, बट आई सरेंडर दिस टू माँ, माई काली माँ एंड भैरव बाबा, कि वो ही मेरे सामने वो ऐसे लोग और ऐसे पाथ अलाइन करेंगे जिससे कि मुझे पता चले कि वो सेकंड स्टेप क्या है। मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। उन्हीं की वजह से मैं सरवाइव कर पाई हूँ। उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला है, ठीक है। तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं एंड वो मुझे लेट डाउन नहीं होने देंगे और वो मेरे विश्वास को टूटने भी नहीं देंगे। एंड आई जस्ट बिलीव इन देम, आई जस्ट बिलीव कि कुछ ना कुछ ज़रूर अलाइन हो जाएगा। आई नो मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी वो 5% 6% डर रहता है कि नहीं हुआ तो, बिकॉज माइंड वो ओवर पावर कर लेता है। लेकिन ट्रस्ट में चीज़ें अलाइन हो जाती हैं एंड हमारी लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना, वो किसी ना किसी मतलब से ही होती है, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि आई हैव बिन शेयरिंग दिस वीडियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। दिस माइंड इज सेइंग, प्रियंका 1 साल हो गए, देखो कोई रिजल्ट नहीं आए, तुम कुछ ठीक कर रही हो। माइंड की नहीं सुननी है, मेरा हार्ट मुझे कह रहा है कि मैं ठीक कर रही हूँ तो मैं ठीक कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आए तो नहीं आए। हर चीज़ का इतनी जल्दी रिजल्ट ज़रूरी नहीं है। कुछ और लिमिटिंग बिलीव्स होंगे, कुछ तो होंगे जिसकी वजह से गॉड मुझे वो रिजल्ट्स अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का रिजल्ट अच्छा ही आए। मे बी ये चीज़ मुझे किसी और पाथ की तरफ डायरेक्ट कर दे, है ना। मे बी इससे मुझे अपने बारे में कुछ और जानने को मिल जाए। मे बी ये चीज़ मेरे उस पाथ के लिए पहला ब्रिज था, यू नेवर नो। तो मैं अपनी माइंड की नहीं सुनूंगी, ऐसे ही आप भी मत सुनिए। अगर आपका दिल कुछ कह रहा है और लिमिटिंग बिलीव से और अपने नेगेटिव थिंकिंग से आप रुक रहे हैं, तो मत रुकिए। पहला छोटा सा स्टेप लीजिए, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपने ऊपर एंड ट्रस्ट मी, वो चीज़ अब धीरे धीरे आपको छोटी लगने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आप अपने आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, ठीक है। ऑन दिस नोट अगेन आई हैव टू गो टू द जिम। I'll see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care. क्या बोलना था? अरे हाँ, क्या क्या बोलती थी मैं? If you guys like my channel, do follow, comment, subscribe to my channel, do share with your friends and family. Till then, bye bye and take care. Bye.